So children, we will continue the revision of lesson number 12, that is reproduction in plants. Yesterday we had discussed about asexual mode of reproduction. There are three methods we had already discussed about it. That is fragmentation, budding, and spore formation. Is there any doubt to anyone in these three methods? Fragmentation, it is to be shown by Spirogyra, budding, yeast and hydra, and then spore formation by bread mold. Okay, ji? These three we had done. Today we will continue with vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation. Anyone? What do you mean by the term vegetative propagation? Hanji bache, is it okay now? Regarding the screen. No, ma'am. अभी भी blur है? एक second. Hanji bache, Arshia, what is vegetative propagation? Vegetative propagation is an asexual mode of reproduction from which new organisms take place with the help of the vegetative parts of the parent organism. बिल्कुल ठीक है. Method of asexual mode of reproduction in which new plant grows from vegetative parts of plant. ठीक है? For example, leaves, stem, etc. In our book, number 1 is stem tumor. हमारी बुक में एक है stems. Through stems. Can you name the plants that can be grown through these stems? Anyone? Potato, right? ठीक है? Stems में बच्चे दो तरह की होती हैं, right? So anyhow, we will discuss about the stem tuber. Stem tuber क्या होता है? Underground part of plant होता है. Especially underground stems, जैसे potato में होती है ना, potato की जो stem होती है, you might have studied that potato has a underground stem, है ना? So tuber क्या होता है? It is the swollen underground part of the stem. ठीक है जी? It is swollen underground part of the stem. उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम. ठीक है? पोटैटो ग्रोज फ्रॉम दैट. अगर जैसे आजकल का बेटे वेदर है ना, इफ यू लुक एट द पोटैटो, जो पोटैटो नॉर्मली बाहर भी पड़ा हुआ है ना, तो यू हैव सीन उसके ऊपर बर्ड्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर गई हैं. रूट्स माइट हैव ग्रोन ओवर देयर. वेदर की जो हल्की सी वार्मथ है, मॉइस्चर है, उसकी वजह से उसके बर्ड्स में से, रूट्स में से ऑलरेडी दे हैड ग्रोन. एंड इफ यू ग्रो दैट आई इन दिस सॉइल, द न्यू पोटैटोज विल ग्रो वेरी सून. ओके जी? सो पोटैटो इट ग्रोज फ्रॉम stem tumor. That's right, Jalash. Other thing is rose. Rose is also grown from the stem by the process of cutting, है ना? By process of cutting. Simply आप उसको कट करो स्टेम को और उसको ग्रो कर दो सॉइल में, इट विल ग्रो. और कोशिश करना, अगर आप रोज प्लांट ग्रो कर रहे हो ना, तो रोज की स्टेम के नीचे वाले हिस्से को ग्रो करना. अबाउट 6 to 8 इंचेस की आप स्टेम ले लेना और थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा लेना, बिल्कुल ऊपर टॉप वाला हिस्सा मत लेना.
if you are about to grow a new plant, and really it works, और आपका प्लांट ग्रो करेगा, ये करता है। ठीक है जी। रोज that can be grown by the process of cutting, then potatoes, they can be grown from the stem tumor, or potatoes have eyes, उस पार्ट को हम बोलते हैं आईज, जहां से उसकी बर्ड्स होती हैं, एंड दे विल ग्रो फ्रॉम दैट। ओके, एंड कैन यू नेम दी plant that grows from the leaf? In your book, one plant is given. The plant which can be grown from leaf is bryophyllum. ठीक है, bryophyllum, it grows from the leaves. बोगनविलिया, बेगोनिया, ठीक है बच्चे, बेगोनिया, बोगनविलिया, ये सारे प्लांट्स जो हैं दे ग्रो फ्रॉम दी लीव्स। इनकी लीफ के ऊपर ही प्रॉपर छोटे छोटे प्लांट्स बने होते हैं उनकी बर्ड्स में। देन रूट्स, फॉर दी रूट्स वी आर हैविंग स्वीट पोटैटो, राइट, दे विल ग्रो फ्रॉम दी रूट्स डायरेक्टली। देन दलिया, यस बच्चे, आपकी बुक में दलिया की एग्जांपल है। ठीक है, these are the few plants that can be grown by the different parts of plant. Now let us discuss few of the major advantages of vegetative reproduction and disadvantages of vegetative reproduction. What are the advantages of this method? ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने थोड़े से एसेक्सुअल मोड में भी डिस्कस किए थे जब डिफरेंस किया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ में। हाँ जी, हु विल टेल, एक मिनट बच्चे, दृष्टि, जसलीन, हाँ जी बच्चे, दैट्स राइट जलश। जसलीन, कैन यू टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? Yes, ma'am. Because of vegetative propagation, the plants can grow faster. हाँ, it's a quick method of growing plants or take less time to mature. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, it's a faster method of growing the plants. और बच्चे, और बेटा, yes, it needs less attention. ठीक है, it's a quick method. Okay, Shreya. Seedless plants can also be grown by the श्रेया, सॉरी बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, as the parent. हाँ, it is a exact copies of the parent plants or carbon copies of the parent plant. जो पॉइंट्स आपने टाइप किए बिल्कुल ठीक है। It needs less attention. ठीक है, these plants they are exact copies of the plant, exact copies of parent, और पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लांट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम उसको फर्दर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स। जहां हमें एक आउटपुट आ रही थी वहां पे दो आ रही हैं। हाँ जी दृष्टि,
seedless plants can be grown. हाँ जी, seedless plants can also be grown by this method. एक मिनट. Yes, seedless plants can also be grown by this method, or हाँ जी, yes, ओवरक्राउडिंग कैसे? दृष्टि आप एक्सप्लेन करोगे बेटा ओवरक्राउडिंग वाला पॉइंट? ओवरक्राउडिंग, हाँ जी श्रेया. श्रेया, so these are the main factors. मुझे लगता है ये काफी है, इतने ही है कि कोई और है किसी के माइंड में? It is a faster method of growing plants. ठीक है, ये क्विक मेथड है. It needs less attention. Exact copies of the parent plant and seedless plants can also be grown by this method. And एक पॉइंट आप और ले सकते हो. These methods वो इसके साथ almost same ही है. These plants take less time to mature. Mature होने में कम टाइम लगता है. ठीक है, they take less time to mature. So these are the few advantages of vegetative propagation. ठीक है जी. Now moving upon to the disadvantages. Disadvantages क्या क्या हैं? ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, फायदे. तो अगर फायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होंगे. What are the disadvantages of these methods? पहली बात तो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं. ठीक है, हाँ जी अर्शिया. If there are any diseases to the parent plants, then they will be transmitted to the new offspring. Yes, first तो यही होगी, because they are the exact copies, so diseases of the parents can also be transmitted, in the offsprings, transmitted to new plant. ठीक है, सिंस एग्जैक्ट कॉपीज है तो नए प्लांट में डिजीजेस भी ट्रांसमिट हो जाएंगे. सेकेंड, हाँ जी, इट इज, हाँ दैट्स राइट, वी कैन नॉट स्टोर वेजिटेटिव प्रोपेगल्स एज सीड्स. ठीक है, वी कैन नॉट स्टोर एज सीड्स. तो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ऑलरेडी यू गाइस नो. थर्ड, हाँ जी, दैट्स राइट जलश, इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यू प्लांट टू सर्वाइव इन चेंजिंग क्लाइमेट. क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जैक्ट कॉपी है, तो जिस क्लाइमेट में पेरेंट सर्वाइव कर रहा है उसी क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर जाएगा. लेकिन अगर आपने उसका क्लाइमेट चेंज कर दिया, मान लो सॉइल थोड़ी चेंज हो गई, दैट्स राइट तान्या, डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन चेंजिंग क्लाइमेट. ठीक है, एंड लास्ट वन इज, हाँ, ओवरक्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड. नो न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड. बिल्कुल ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, बेटे मैं नो न्यू नहीं कर रही, मैं डिफिकल्ट वर्ड कर रही हूँ. ठीक है, डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज. क्यों? क्योंकि आजकल कुछ ऐसे मेथड्स आ गए हैं ग्राफ्टिंग जैसे, उससे हम न्यू वेराइटी भी बना रहे हैं बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन.
ग्राफ्टिंग सुना हुआ है आपने कि जैसे अगर दो रोज के प्लांट्स हैं, एक वाइट है एक रेड है, हाफ प्लांट वो काट लो, हाफ स्टेम उसकी हाफ स्टेम उसकी, उन दोनों को आपस में टेप से कंबाइन कर दो, तो वो प्लांट जो बनेगा तो उसका जो रोज होगा वो व्हाइट और रेड का मिक्सचर होगा, पिंकिश कलर का होगा। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे नो नहीं कह सकती, डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। ठीक है, न्यू वेराइटी प्रोड्यूस करना इसमें डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज किसी टाइम पे आपका पॉइंट ठीक है, न्यू नहीं पॉसिबल था, बट नाउ इट इज पॉसिबल। हाँ जी, लास्ट आपने, यस अर्शिया, कैन यू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ ओवरक्राउडिंग? Since the plants grow quickly, there can be a case of overcrowding due to their speedy growth. If this, हाँ जी बच्चे, due to the production of number of plants, it may leads to overcrowding of particular plant. एक मिनट, ठीक है, इफ सेम स्पीशीज, क्योंकि उसको सेम ही क्लाइमेट चाहिए, सब कुछ सेम चाहिए, तो इसलिए ये प्लांट जो है इट मे लीड्स टू ओवरक्राउडिंग। ठीक है, इफ मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया, particular or restricted area, then overcrowding will be there. Chances of overcrowding या overcrowding will be there. May be there. हाँ जी बेटे, that completes your half of the chapter, that is, it completes half of the chapter, और इस chapter में हमने एक mode of reproduction, that is asexual mode of reproduction complete हो गया। इसके बाद हमारा next topic है sexual mode of reproduction in plants, जिसमें हमने discuss करने हैं बेटे firstly flower, parts of flower discuss करेंगे, फिर pollination क्या होती है, that's right खुशी, pollination के बाद fertilization के बाद formation of seeds and fruits, and finally from seeds to plants, that is germination। ठीक है, asexual mode of reproduction में किसी को कोई doubt है? No. So if not, then let's shift to the second method of reproduction, that is sexual mode of reproduction. It is a mode by which a new plant grows from a difficult to produce new varieties. Okay, बच्चे देखो, हम ये कहते हैं कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है तो जो न्यू प्लांट ग्रो करता है वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। यहाँ तक क्लियर है? वो पेरेंट प्लांट की कॉपी होता है। अगर मान लो मैंने एक रेड रोज स्टेम ली, ठीक है, रेड रोज की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन है। ठीक है, अब मैं वो रोज प्लांट लेती हूँ, उसकी स्टेम लेती हूँ, उसको ग्रो करूंगी, तो जो न्यू रोज बनेगा वो कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। ऐसे ही होगा ना, जब मैं उसकी स्टेम्स को 3-4 जगह पे लगाऊंगी, जब वो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो फ्लावर देंगे वो भी रेड कलर के होंगे। तो दे आर सेम, उसमें कोई नई वेराइटी तो नहीं आई। साइज ऑफ द फ्लावर रफली सेम होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी में बड़ा हो जाएगा, वो डिपेंडिंग करता है न्यूट्रिशन, अगर इक्वल न्यूट्रिशन इनको मिल रहा है तो सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन इफ आई वांट कि मुझे एक येलो फ्लावर चाहिए, येलो फ्लावर के लिए या पिंक फ्लावर के लिए मुझे पिंक फ्लावर की स्टेम लेनी पड़ेगी, तो न्यू वेराइटी नहीं आई। लेकिन आज की डेट में हम नई वेराइटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन दी मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसे? ग्राफ्टिंग के थ्रू। ग्राफ्टिंग का मेथड अदरवाइज हमारी बुक में नहीं है। उसमें क्या होता है, सिंपली व्हाट दे विल डू कि जैसे हाफ स्टेम ले ली रेड प्लांट की, रेड रोज की, ठीक है, ऐसे हाफ स्टेम रेड रोज की ले ली, ठीक है, इसके ऊपर हाफ स्टेम उन्होंने पेस्ट कर दी, ये वाली हाफ स्टेम उनकी हो गई वाइट रोज की,
इन दोनों को सिंपली टेप से ऐसे कवर कर देते हैं, जो नॉर्मल आपकी टेप नहीं होती, सेलो टेप या ब्लैक टेप, और उसको सॉइल में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। दे विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, और उस टाइम पे जो फ्लावर आपके पास आता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट। नॉर्मली पिंक कलर का हो सकता है, किसी पॉइंट पे व्हाइट ज्यादा हो सकता है, किसी में रेड ज्यादा हो सकता है। तो ये जो मेथड्स है ना, इसमें हमारे पास न्यू वेराइटी आ गई ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड डिफिकल्ट लिखा है कि नई वेराइटीज प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप में से किसी बच्चे ने टाइप किया था दैट नो न्यू वेराइटीज कैन बी मेड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, बट अब आज की डेट में ये पॉइंट पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम नई वेराइटीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई फ्रूट है, मान लो फ्रूट्स तो चलो ग्रो फ्रॉम दी सीड्स, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली घर में धनिया यूज कर रहे हैं। अब एक धनिया की वैरायटी है, उसमें खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो लीफ है वो बहुत स्मॉल है। दूसरी वैरायटी है, उसमें लीफ बहुत बड़ा है लेकिन उसमें स्मेल अच्छी नहीं है। तो उन दोनों को आपस में कंबाइन करके लगा दो, तो जो न्यू वैरायटी बनेगी वो दोनों का मिक्सचर होगी। ठीक है, तो देयर आर लॉट मेनी मेथड्स। जब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ओके जी, तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। करें शुरू? सॉरी, हाँ जी बच्चे। Sexual method of reproduction means a method of reproduction in which a plant grows from a seed, है ना? Plant grows from a seed. बेटे एक पॉइंट था, आप लोगों ने जब डिफरेंस किया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल में आपने लिखा था पेरेंट्स may or may not exist. हाँ सर। बच्चे प्लीज, हाँ जी, आपने लिखा था पेरेंट्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना? उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, पेरेंट्स बॉडी मे एग्जिस्ट एज इट इज और in form of daughter cells, in form of daughter cells. ठीक है, as it is या separately और in form of daughter cells. जैसे स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा में पेरेंट्स की बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है, पेरेंट इटसेल्फ डिवाइड हो जाता है, पेरेंट एग्जिस्ट करता है बट इन फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, एग्जिस्ट एज इट इज की जगह यहाँ पे सेपरेटली कर लो, क्योंकि हम सेक्सुअल मोड में इसको सेपरेटली ही लिखेंगे, सेपरेटली। ठीक है, और जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी विल डिस्कस पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, you may write offsprings or daughters exist separate, ये separately exist करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिए प्लीज। पॉइंट वही है, लेकिन उसमें हम ये कह देते हैं कि पेरेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जबकि ये कई बार से इश्यू आता है कि पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो डिवाइड होकर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट में थोड़ी सी करेक्शन करो, लाइन वही है, सिर्फ वर्डिंग का थोड़ा सा फर्क है। मे एग्जिस्ट सेपरेटली और इन द फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स, दे एग्जिस्ट सेपरेटली। ओके, हाँ जी बच्चे, ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फाइन, तो इसमें मुझे लगता है सब बच्चों ने करेक्शंस कर ली हैं अपनी, आई होप सो। ओके, हाँ जी, so shall we move to this part, that is sexual method of reproduction in plants? In this method
Plants, they grow from the seeds, and seeds, they are made from the reproductive part of plant. What is the reproductive part of plant? हाँ जी, ये तो हमें बहुत पहले से कराया जा रहा है, राइट दृष्टि? संचित क्या होता है? अर्शिया करेक्ट, जलश, जसलीन, संचित, keep yourself muted. खुशी, it is incomplete. Mithul, right? हाँ जी संचित, are you there? Keep yourself unmuted. Unmute yourself. नहीं. Anmol, right Tanya? हाँ जी बच्चे, that's correct. The reproductive part of plant is flower. The colorful, sweet smelling part of the plant is called as flower. It is the reproductive part of the plant. ठीक है? And our flower, it basically consists of 4 main parts. Number 1, sepals. Sepals are the colorful parts of the plants. They are having sweet fragrance, which is required to, Sania ji, incomplete hai beta, which is required to attract the insects for pollination. ठीक है? Sorry, sepals is a part that is a green whorl-like structure जो नीचे से green color की होती है. It protects the flower at budding stage. ठीक है? Bud stage में flower को protect करती है. ठीक है? Bud stage की protection की duty है sepals की. Okay? Second हमारा part था petals. Petals is the colorful part of the plant which is having which is having beautiful colors and sweet fragrance. It attracts insects for pollination. ठीक है? ये इनके मेन रोल हैं. Afterwards, ये तो साइड पावर पार्ट्स हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. They have been lost. मेन पार्ट इसके जो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दैट इज स्टेमन. ठीक है? एंड फोर्थ वन इज पिस्टल. Stamen is a part, it is a male reproductive part. It has pollen grains, and pistil is a female reproductive part. We have to discuss both the parts in detail. But time is running out. There are only 4 minutes left. If there is any doubt, you can ask. Otherwise, I will continue with stamen. आप लोगों ने पहले किया हुआ है, तो मैं stamen पे ही continue करूं. So okay, let us continue with stamen. Stamen is a part of plant. It is a male reproductive part of plant. It further consists of 2 main parts, anther and filament. What is anther? Anther is a knob-like structure present on the filament and a bulb-like structure. That's right. Bulb-like structure present on the top swollen part of the stamen भी लिख सकते हो, और bulb-like या knob-like structure present on the filament भी लिख सकते हो at the top of stamen. ठीक है? चलो आपने जो लिखा है, I will write that. Swollen part of top swollen part of stamen. ठीक है जी? It is a tube-like structure that connects the anther to the flower. ठीक है जी? Filament is a tube-like structure that connects the anther to the flower, or you can simply write it as stalk of stamen.
इन सिंपल वर्ड्स हम स्टॉक ऑफ स्टेमन बोल सकते हैं. What does anther contains? Anther contains the pollen grains. Energy. Anther. Anther contains yellow powdered dust which is called as pollen grains, and these pollen grains, they are the carriers of male gametes. ठीक है? Sorry. Anther contains yellow powdered dust called as, क्या बोलते हैं इस पाउडर डस्ट को, क्या बोलते हैं हम लोग? Pollen grains, and these are the carriers of, which are the carriers of male gametes. ठीक है जी. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. अगर स्टिल डाउट है, वी विल डिस्कस इट टुमारो. कल हम करेंगे बेटे डायग्राम्स पोलन ग्रेन्स का, सॉरी इसका स्टेमन का, पिस्टिल का, और साथ ही साथ पिस्टिल और स्टेमन वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे along with the diagram of flower. Right? We will try to complete pollination tomorrow. और अगर नहीं होगा तो एक दिन बाद में. ठीक है? On Saturday I will show you in a lab कि how it occurs. ये पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, that I will show you. Okay जी? So let's meet in the next lecture. Bye bye बच्चे.